Hello friends, last lecture we have discussed the chemical thermodynamics. Today we are going to start next chapters, that is the ionic equilibrium. But about the ionic equilibrium, the some concept we have studied in the 11th standard in the chapter chemical equilibrium. In the chemical equilibrium, we have discussed the different principles, and that principle is about the different electrolytes. And that principle, by using this principle, we have determined the equilibrium constant. How to determine the equilibrium constant? By using the principle of the chemical equilibrium. They are studied in the chapter, that is the ionic equilibria. But before study the ionic equilibria, you must know the some basic. आपको वहां पे कुछ क्या पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए. दैट इज फर्स्ट वन इज गिव द हेडिंग आयनिक इक्विलिब्रिया. सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए आयनिक इक्विलिब्रिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दी, आपको इस टॉपिक का क्या देखना है, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको उसका क्या देखना, बेसिक देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दी व्हाट इज माय केमिकल्स. केमिकल किसे कहते हैं? अ सब्सटेंसेस इज अ कंसिस्टिंग ऑफ मैटर्स. A substances consisting of matter इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, केमिकल कहते हैं. द केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में रहते हैं. यहाँ पे आपको केमिकल की डेफिनेशन क्लियर हो गई. अ सब्सटेंस इज अ कंसिस्टिंग ऑफ द मैटर इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, केमिकल कहते हैं. What is my chemical equilibrium? फिर यहाँ पे आपको वह पता होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं. अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच rate of the forward reaction and backward reactions are equal इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. व्हाट इज माय केमिकल इक्विलिब्रियम? अ स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. या अ इक्विलिब्रियम इन विच नो नेट चेंज इन concentration of the reactant and product is called chemical equilibrium कहते हैं. Those equilibrium no any net change in the concentration of the reactant and product is called, उसे क्या कहते हैं, chemical equilibrium. Consider a chemical reaction. A plus B goes to the C plus D. A plus B is the reactants and C plus D is the क्या है, product है. When the concentration of the reactant and product is become equal, in there is attained the equilibrium, that is the chemical equilibrium. अभी यहाँ पे कुछ भी जब equilibrium अटेंड हो रहा है, कब, when the concentration of the reactant and product is become equal, no any change, that is that equilibrium is known as, उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. The equilibrium in between the ionic species in the solution, the equilibrium in between the ionic species in solution is known as, उसे क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रिया कहते हैं. The equilibrium in between the ionic species in solution is known as the ionic equilibrium. When acid, base and salt
is a dissolved in waters, and they are the dissociate the some extents. क्या होते? They are the dissociate the some extent, and to attain the equilibrium in between the ions and unionized molecules. और क्या अटेन करता है? इक्विलिब्रियम अटेन करता है इन बिटवीन द आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. What is my ionic equilibrium? The equilibrium is a developed in between ions and unionized molecules in solution. इस क्वाड उसे क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रिया कहते हैं. What is my ionic equilibria? The equilibrium is a developed in between the ions and unionized molecule. It's called ionic equilibrium. The ionic equilibrium is the chemical equilibrium. Ionic equilibrium ही क्या है? Chemical equilibrium है, and they are the developed in between the ions and unionized molecules. Ionic equilibrium ही क्या है? Chemical equilibrium है, and they are the developed in between the ions and unionized molecules. Okay, that is the definition of the, किसके definition है? आयनिक इक्विलिब्रिया की क्या है? definition. Now we will discuss next points, that is electrolytes. अभी आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं. A substance is a dissolved in a substance is a dissolved in waters to produce the positively and negatively charged ions. इस क्वाड उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. What is my electrolyte? A substance is a dissolved in waters, and they are the dissociated to produce the positively and negatively charged ions. It's called electrolytes. Yeah, those electrolyte is a conduct the electricity, and to produce the what? Ions is known as, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. Those are substance is a conduct the electricity. जिस सब्सटेंस में से क्या कंडक्ट? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंडक्ट होती है. एंड टू प्रोड्यूस द व्हाट? आयंस इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ the nature of extent of ionizations and dissociation, on the basis of the nature of the extent of ionization or dissociation, they are the maybe completely, या नहीं तो कैसा डिसोसिएट होता है? पार्शियली डिसोसिएट होता है. यहाँ पे क्या बताया मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, दे आर मे बी, वो इलेक्ट्रोलाइट का कैसा डिसोसिएशन होता है? कंप्लीटली या व्हाट? पार्शियली उसका क्या होता है? डिसोसिएशन होता है. फॉर एग्जाम्पल एसिड, अनदर एग्जाम्पल बेस एंड व्हाट? सॉल्ट. पूरे एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये किसके एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है. ओके, नाउ यहाँ पे होगा व्हाट इज माय इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. अभी इलेक्ट्रोलाइट के क्या देखेंगे? टाइप्स देखेंगे. गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ electrolytes. The electrolyte is classified into the two types on the basis of the extent of dissociation. Extent of dissociation से
इलेक्ट्रोलाइट के कितने टाइप है? 2 टाइप्स है. दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, strong electrolytes. What is my strong electrolyte? Those electrolyte is a completely dissociated in aqueous solution. It's called strong electrolytes. जिस electrolytes कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है इन एक्वस सोल्यूशन, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए, सभी एसिड, कौन से एसिड? HCl, H2SO4, HNO3, okay, another one is a HCl. all these example is a पूरे किसके? ये एसिड जो है that is a strong electrolyte. Base, NaOH, another one is a KOH. This also base is the what? Strong electrolytes. Next, salt, NaCl, K2SO4. This also strong electrolyte. यहाँ पे बताया मैंने जितने एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये जो दिए हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. बिकॉज दिस इलेक्ट्रोलाइट इज उसका कंप्लीटली क्या होता है? डिसोसिएशन होता है इन एक्वस सोल्यूशन, इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. देखिए NaCl, उसको वाटर में डिजोल्व किया तो दे आर दी प्रोड्यूस द Na प्लस aqueous plus Cl minus aqueous. Because here is a NaCl is a completely dissociated and to produce the ions, therefore NaCl is a कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. नेक्स्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. सेकंड टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का सेकंड टाइप देखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. व्हाट इज माय वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? Those electrolyte is the dissociated the smaller extents. Those electrolyte is a dissociated the smaller extent is known as a weak electrolytes. For example, CH3 COOH, NH4 OH, S2 CO3, HCOOH, H2S, HF. all these example is a पूरे के पूरे किसके example? weak electrolyte. The weak electrolyte is a develop the ionic equilibrium. The weak electrolyte is a develop the ionic equilibrium in between the undissociated ions and अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स. इसके बीच में वो क्या अटेंड करता है? इक्विलिब्रिया अटेंड करता है. कौन सा इक्विलिब्रिया? आयनिक इक्विलिब्रियम. व्हाट इज माय वीक इलेक्ट्रोलाइट? जिस इलेक्ट्रोलाइट का स्मॉलर एक्सटेंट में क्या होता है? डिसोसिएशन होता है. दे आर नोन एज, उसे क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. नाउ अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसेस. गिव द हेडिंग, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दी व्हाट इज माय स्ट्रॉन्ग एसिड. यहाँ पे आपको पहले क्लियर होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं. एंड एसिड विच आर आयोनाइजेज द कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन एंड टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ द H प्लस आयन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ द, किसके एग्जाम्पल है? स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है.
बिकॉज ये एसिड का पोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है एंड टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ द क्या प्रोड्यूस करते हैं H प्लस आयन, देयरफॉर दे आर नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. नेक्स्ट, वीक एसिड. An acid which are ionizes incompletely, या an acid which are ionizes the smaller extent in aqueous solution and to produce the less number of the क्या produce करते हैं H plus ion is called weak acid. What is my weak acid? An acid which are ionizes the smaller extent in aqueous solution to produce the less number of the H plus ion is called, उसे क्या कहते हैं, weak acid कहते हैं. For example, देखो, that is a CH3 COOH. Next one is a HCOOH, NH4OH, H2S. Another one is a HF. This is the example of the what? सॉरी, यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं है NH4OH, ओनली CH3COH, HCOH, H2S एंड HF. बिकॉज दिस एसिड इज उसका कैसा डिसोसिएशन होता है, लेस प्रोपोर्शन में, एंड दे आर गिव द लेस नंबर ऑफ द H प्लस आयन, दे आर नोन एज, उसे क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस. अभी यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज माय स्ट्रॉन्ग बेस. व्हाट इज माय स्ट्रॉन्ग बेस? अ बेस विच आर ionizes the completely in aqueous solution to produce the large number of the OH minus ion is called strong base. What is my strong base? A base which are ionizes the complete aqueous solution and to produce the large number of the OH minus ion is called, उसे क्या कहते हैं, strong base कहते हैं. For example, NaOH, another example KOH. This is the example of the what? Strong base. Next, weak base. What is my weak base? A base which are ionizes the smaller extent in aqueous solution and to produce the less number of the OH minus ion. क्या प्रोड्यूस करता है, लेस नंबर ऑफ दी OH माइनस आयन, इज कॉल्ड वीक बेस. फॉर एग्जाम्पल, NH4OH, another one is a CuOH taken to. Next, FeOH taken 3, MgOH taken 2. दिस इज अ एग्जाम्पल, इज ए पूरे के पूरे किसके एग्जाम्पल है, वीक बेस के एग्जाम्पल है. व्हाट इज माय स्ट्रॉन्ग बेस एंड व्हाट इज माय वीक बेस? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस. यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्या पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड किसके, बेसिस के. नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज, अभी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आयोनाइजेशन किसे कहते हैं एंड डिसोसिएशन किसे कहते हैं. व्हाट इज माय आयोनाइजेशन? क्योंकि कब से मैं बोल रहा हूं आयोनाइज, फिर अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आयोनाइजेशन किसे कहते हैं. द प्रोसेस इन विच the separation or formation of positive and negative ions from covalent compounds is called, उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं. What is my ionization? The process in which the separation or formation of positive and negatively charged ion from the covalent compound is known as, उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट, what is my dissociation? डिसोसिएशन किसे कहा जाता है?
the process in which the separation of positive and negative ions from the ionic compounds when dissolved in water इस कॉल्ड उसे क्या कहते हैं डिसोसिएशन कहते हैं. व्हाट इज माय डिसोसिएशन? द प्रोसेस इन विच द सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिवली आयंस from ionic compound when dissolved in water is called dissociation. This is the ionization and dissociation. Ionization किसका होता है? कोवैलेंट कंपाउंड का. फिर कोवैलेंट कंपाउंड का आयोनाइजेशन होने के बाद जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फॉर्म होता है दैट इज नोन एज ए आयोनाइजेशन. यहाँ पे सेपरेशन भी हो सकता है यार, फॉर्मेशन भी हो सकता है, और यहाँ पे डिसोसिएशन में सिर्फ क्या होता है? सेपरेशन. बट डिसोसिएशन इज अ परफॉर्म कैरिड आउट ओनली ऑफ व्हाट विच कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड का क्या होता है? डिसोसिएशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट्स. Give the heading, that is the degree of dissociation. अभी जो पॉइंट आपको डिस्कस करना है that is the degree of dissociation. What is my degree of dissociation? The fraction of the total number of moles of electrolytes are ionized at equilibrium in aqueous solution is known as, उसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं. What is my degree of dissociation? The fraction of the total number of the moles of the electrolyte which are ionized at equilibrium at given temperature is known as, उसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज्ड at equilibrium divided by the total number of moles that is the degree of dissociation. Suppose total number of moles कितने 100 है, फिर वो कितना उसका डिसोसिएशन हुआ? 50. फिर 100 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज 50 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आयोनाइज, यू विल गेट, आपको वहां पे क्या मिलता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलता है. नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज and you will get, आपको क्या मिलता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलता है. The degree of dissociation is equal to the percentage of the ionization divided by the hundreds. आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको जब परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन दिया है that is divided by the 100, you will get, आपको वहां पे क्या मिलता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलता है. that is a percentage of ionization. फिर आपको ऐसा भी आपको आप यहाँ पे डिटरमाइन करना है तो द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आयन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. Concentration of the equilibrium of ion is equal to alpha into C, where C is the concentration of the equilibrium in moles per dm cube. फिर यहाँ पे आपको उस equilibrium of ion का आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो? concentration फाइंड आउट कर सकते हैं. If higher the values of the degree of dissociation, they are the strong electrolytes.
इलेक्ट्रोलाइट कैसा रहेगा, स्ट्रांग। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हायर रहेंगी तब वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा रहता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रहता है। आणि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैसी होंगी, लेस होंगी, तो दैट इलेक्ट्रोलाइट इज वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा रहता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह से फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जब आपको परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन दिया तो तब भी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट लेक्चर we will discuss that is the factors affecting the degree of dissociation के क्या देखेंगे, फैक्टर्स। ओके, गुड डे।